جو گجرات کا ہے جی وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہے، جی تو اس کو لے کر مطلب وکاس پر وہ فوکس کر رہے ہیں، وہ باقی راجنیتک یا سیکولر یا اس کمیونل ان مدوں پہ یہ کوشش رہے گی کہ جی اس کو سیکولر کمیونل کی جی ایک لڑائی لے کر آئے اس کو کانگریس، پر یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. ان کا ٹوٹل ایجنڈا جو ہے ٹوٹل فوکس رہے گی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ، اور یہ جو اور اسی کے اندر وہ عام آدمی کی پارٹی کی چنوتی کو بھی اور کانگریس کے سیکولر کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. پارٹی کی کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، آرتھک نہیں ہے، پر ان دونوں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس دیش کی راجنیتی کی جو اکانومی ہے اس کو 1970 سے پہلے پرانے سماجوادی فارمولے اور اس پہ کیسے لی جائے. نریندر مودی اور بی جے پی خاص کر یہ دونوں جو ہیں اکنامکلی لبرل ہیں. جو 1990s میں جو ایجنڈا جو نرسمہا راؤ مطلب آرتھک مہاشکتی بننے کا انہوں نے اس بار میں کچھ کئی فارمولے دیے ہیں اپنے، اور کریڈیبلٹی اس لیے ہے کہ آپ نے گجرات میں کر کے دکھایا ہے اور اس کی اہمیت بہت ہے. باقی رہی کانگریس کا یہ چارج، سونیا جی کا جو چارج رہا کہ بھی آپ کمیونل ہیں، آپ جو ہے کیرلا میں سرکار چلا رہے ہیں انڈین نیشنل مسلم لیگ کے ساتھ اور کیرلا کانگریس کے ساتھ. ایک مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایک صرف چھوٹا سا جو طبقہ ہے کرسچن کو ریپرزینٹ کرتے. آپ سیکولرزم کا آپ اپنا تگمہ لینا چاہتے ہیں اور دوسرے کو آپ کمیونل بتا رہے ہیں. تو میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ عام جنتا اب جانتی ہے کہ یہ ٹوٹلی یوز لیس نہ رہے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اسی کو اہمیت دیتی ہے، عام ووٹر بھی اہمیت دیتا ہے. اس ناطے اس پریشد کی بیٹھک میں چہرے کے علاوہ ایک آرتھک وہ یہ کہ وہ لیڈرشپ کے ناطے کی دیش کا آرتھک وکاس ہوگا تو عام آدمی کا وکاس ہوگا. میرا خیال ہے بی جے پی کا یہ نعرہ ہے. جی ویرین جی، بات چیت کو یہیں سماپت کریں گے. پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. ہمارا پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے اسی چینل پر اسی سمے. प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार. सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे. ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं. प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप. बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा. ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عالمی منظر. میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. پاکستان میں مسلسل دوسرے روز بم دھماکے، کم از کم 15 افراد ہلاک. عراق میں مختلف مقامات پر دھماکے، کم از کم 28 افراد ہلاک، متعدد زخمی. اقوام متحدہ نے جنیوا مذاکرات میں ایران کو کیا مدعو، امریکہ اور شامی اپوزیشن کو اعتراض.
اور ایران نے یورینیم کی 20% افزودگی کا عمل روکا، 24 نومبر 2013 کے جنیوا معاہدے پر عمل آوری شروع۔ اور خبر تفصیل سے پہلے بات پاکستان سے۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں آج ایک خودکش حملے میں 13 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ شہر میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے باہر کیا گیا۔ حملے کی ذمہ داری پاکستانی طالبان نے قبول کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور سائیکل پر سوار تھا اور جیسے ہی وہ فوجی چیک پوائنٹ کے پاس پہنچا اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پیر کے روز کیے گئے اس حملے سے پہلے یعنی اتوار کے روز ملک کے شورش زدہ شمال مغربی علاقے میں بھی ایک فوجی کمپاؤنڈ کے اندر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 20 فوجی ہلاک اور 30 فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ اتوار کے روز کیے گئے خودکش حملے کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملہ تنظیم کے سابق نمبر 2 کمانڈر ولی الرحمان کی ہلاکت کے خلاف انتقام کے مقصد سے کیا گیا، جنہیں پچھلے سال ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ راولپنڈی کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پاکستانی طالبان کے ایک ترجمان شاہد اللہ شاہد نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ بھی فوج کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ پیر کے روز کیے گئے حملے کو بھی پولیس نے خودکش حملہ قرار دیا ہے۔ یہ سوسائڈل اٹیک تھا اور اس میں جو ہے وہ سوسائڈل جو تھا وہ اس نے اپنے آپ کو یہ obviously یہ لوگ اکٹھے ادھر تھے تو اس نے وہاں جا کے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ شمال وزیرستان کو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹوں کی پناہ گاہ مانا جاتا ہے۔ اس علاقے میں فوج کے قافلے اکثر سڑک کے کنارے بم دھماکوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں، تاہم فوجی کمپاؤنڈ کے اندر حملہ غیر معمولی ہے۔ پاکستانی فوج قبائلی علاقوں میں ملیٹنٹوں کے خلاف آپریشن چلا رہی ہے۔ قبائلی علاقوں کو پڑوسی ملک افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج کے خلاف لڑنے والے ملیٹنٹوں کی بھی پناہ گاہ مانا جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ پاکستان کی شورش زدہ خیبر پختونخوا ریاست میں آج 2 مختلف بم دھماکوں میں 2 لوگ ہلاک اور بم ناکارہ کرنے والے عملے کا ایک سینئر اہلکار زخمی ہو گیا۔ یہ دونوں دھماکے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے۔ لونی علاقے میں ریموٹ سے کیے گئے ایک بم دھماکے میں 2 لوگ زخمی ہو گئے، لیکن اسپتال جاتے ہوئے دونوں نے دم توڑ دیا۔ اس دوران اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں کئی اور بم نصب کیے گئے ہیں۔ بم ناکارہ کرنے والا عملہ وہاں پہنچا اور اس نے مزید 4 بموں کو ناکارہ کر دیا، لیکن ایک IED کے پھٹ جانے سے عملے کا چیف زخمی ہو گیا۔ دھماکوں کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے۔ اور اب رخ عراق کا۔ عراق میں تشدد کی لہر جاری ہے۔ ملک کے مختلف مقامات پر بم دھماکے ہوئے ہیں، جس میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بغداد کے قریب الجدیدہ کے قریب ہوئے دھماکے میں کئی کاروں اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بازاروں اور عدالت کی عمارتوں کو نشانہ بناتے ہوئے دھماکے کیے گئے۔ ان دھماکوں میں القاعدہ کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شام کے سیاسی بحران پر 24 جنوری کو جنیوا میں شروع ہونے والے امن مذاکرات میں ایران کو اقوام متحدہ نے مدعو کیا۔ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران شام میں عبوری حکومت کے قیام میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ جنیوا مذاکرات 2 میں ایران کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یہ اطلاع دی۔ بان کی مون کا ماننا ہے کہ شام کے بحران پر ایران کو امن مذاکرات کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ انہوں نے حالیہ دنوں میں شام کی صورتحال پر ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے بات چیت کی ہے اور جواد ظریف نے شام کے بحران کے حل کے لیے تعمیری رول ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ Like all the other countries invited to the opening day discussions in Montreux, Iran understands that the basis of the talks is the full implementation of the 30 June 2012 Geneva Communique, including the action plan. Foreign Minister Zarif and I agree that the goal of the negotiations is to establish, by mutual consent, a transitional governing body
with the full executive powers. It was on that basis that Foreign Minister Zarif pledged that Iran would play a positive and constructive role in Montreux. शाम में अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए 30 जून 2012 में जिनीवा में हुए पहले मुज़ाकरात में ईरान को मदऊ नहीं किया गया था। जिनीवा 2 इजलास के लिए 30 मुल्कों को पहले ही दावत दी जा चुकी है। इतवार को बान की मून ने मजीद 10 मुल्कों को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी है। I believe the expanded international presence on that day will be an important and useful show of solidarity in advance of the hard work that the Syrian government and opposition delegations will begin 2 days later in Geneva. मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत के अक़वाम मुत्तहिदा और रूस तो हामी है, लेकिन अमरीका इसके हक में नहीं है। अमरीका मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत का इसलिए हामी नहीं है क्योंकि उसने 2012 जिनीवा मुरासले की तौसीक नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का ये अमल शामी अपोजिशन और अमरीका को नहीं भाया है। इन दोनों ने जिनेवा इजलास में ईरान को मदऊ किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया है। अमरीका का मानना है कि ईरान की मौजूदगी से मुज़ाकरात पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। अमरीका के मुताबिक ईरान दरपर्दा बशर अल असद हुकूमत की तायीद कर रहा है। ऐसे में वो वहां अबूरी हुकूमत के क़याम में तामीरी रोल कैसे अदा कर सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। ये लो, साहब ने आज भी बिजली का बिल नहीं भरा। अब भरो फाइन। ये फोन निकाल। मैं नौकरी करता हूं, तुम घर को संभालती हो, और प्रेसिडेंट साहब फोन पे ग्रो अप। बिजली का बिल भर रहा था। हैं? बिल पेड। भोपला पास करना। पेश है एयरटेल मनी। बिल भरिए, पैसे भेजिए, रिचार्ज कीजिए डायरेक्ट मोबाइल से। कॉल 400। सिंपल। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों की हिमायत वाली शाम की अहम अपोजिशन बॉडी सीरियन नेशनल कोalition ने ऐलान किया है कि अगर ईरान जिनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है तो सीरियन नेशनल कोalition कॉन्फ्रेंस से खुद को अलहदा रखेगा। सीरियन नेशनल इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान को दिया गया दावतनामा
वापस लेने की अपील भी की है। शाम की अहम अपोजिशन बॉडी सीरियन नेशनल इत्तेहाद ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईरान शाम के मामले पर होने वाली जिनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है तो शाम का कौमी इत्तेहाद SNC कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगा। शाम के हमसाया मुल्क तुर्की से अपनी सरगर्मियां चलाने वाले शाम के कौमी इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि ईरान से दावतनामा वापस लिया जाए। When they received confirmation that Iran is invited, Ban Ki-moon has sent an invitation to Iran. Immediately after, I think, 30 minutes, they announced the coalition will not attend Geneva 2 unless this invitation should be recalled. Announcement and statement done by Mr. Safi, the official spokesman, and he said, no, we are not going to attend that unless Iran withdraw its troops from Syria, withdraw Hezbollah and Abu Fadl Abbas troops, militias from Syria, and to declare that is going, Geneva 1 is accepted and it is going to help in such resolution. शामी कौमी इत्तेहाद SNC के मुताबिक ईरान ने मार्च 2011 में शाम में शुरू हुई खाना जंगी के बाद से शामी हुकूमत को अरबों डॉलर की माली इमदाद फराहम की है। SNC का कहना है कि ईरानी फौज के ताकतवर धड़े पासदारान इनकलाब के जवान बशर अल असद की फौज का ताउन कर रहे हैं और ईरान की मावनत से लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के मुसल्लह जवान शामी अपोजिशन के साथ दू बदू मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी जानिब इसी ईरान को मसला शाम के हल के लिए मुनक्किद होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जा रहा है। ये अमल SNC को कबूल नहीं। It was like a shock for all of us. When you are going to have a political solution for any crisis, for any problem, you should invite the people who helped to have to achieve such goal, not to bring people who can make this goal could not be achieved. It's very important for all the people to be, peacemaker, not, deal breaker, as we say. फिलहाल शामी कौमी इत्तेहाद ने जिनेवा 2 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपनी शर्त पेश कर दी है। अब देखना यह है कि इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में और खैबर पख्तूनख्वा रियासत में भी बम धमाके हो रहे हैं। कल भी धमाके हुए थे। इस सिलसिले में बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद जावेद रशीद सीनियर सहाफी से। जावेद रशीद साहब, आपका खैर मकदम है। जिस तरह से पाकिस्तान में ये धमाके हो रहे हैं, कल भी हुए थे, आज भी हुए हैं, आम आदमी भी निशाना बन रहा है और फौजी भी निशाना बन रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, इसको कैसे देखा जा रहा है? जी जावेद रशीद साहब, पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में इस पर किस नजर से देखा जा रहा है और क्या हो रहा है वहां पर? लगता है हमारा राब्ता नहीं हो पाया है जावेद रशीद साहब से। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाम के सियासी हल के लिए चीन ने दुनिया के सामने 5 तजावीज पेश की हैं। ये तजावीज चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेश की हैं। शामी बहरान के पुरअमन सियासी हल के लिए चीन ने जो 5 तजावीज पेश की वो इस तरह है। पहला ये कि मसला शाम का हल सियासी तौर पर किया जाए। दूसरा, शाम का मुस्तकबिल शामी अवाम ही तय करें। तीसरा, शाम के हर तबके को साथ लेकर इक़्तिदार की मुंतकली के अमल को आगे बढ़ाया जाए। चौथा, कौमी मसालिहत और इत्तेहाद पर जोर दिया जाए। और पांचवा ये कि मुल्क शाम के अंदर और उसके हमसाया मुल्कों में पनाह लेने वाले रिफ्यूजियों तक इमदाद की रिसाई को यकीनी बनाया जाए। ये तजावीज पेश करते हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने उम्मीद जताई कि जेनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस में तमाम फरीक शाम के बेहतर मुस्तकबिल और शामी अवाम के मुफाद में कोई हिकमत अमली वज़े करेंगे। 我们希望叙利亚各方从国家前途命运和叙利亚人民的整体利益出发，拿出政治意愿，从各自立场相向而行，走出一条借鉴国际和地区友谊经验，符合自身国情，兼顾叙利亚各方利益的中间道路。叙利亚各方
采取公正平衡、不偏不倚的态度，不断为达成政治过渡方案创造有利的条件，提供必要的环境。同时，应该避免从外部强加政治解决方案。शाम के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से स्विट्जरलैंड में बुलाई गई अमन कॉन्फ्रेंस 2 मरहलों में होगी। पहला मरहला स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रैक्स में 22 जनवरी को शुरू होगा, जबकि जिनेवा मुज़ाकरात 24 को होंगे। इससे कबल 30 जून 2012 को शाम के मामले पर जिनेवा में अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में न तो बशार अल असद हुकूमत और न ही शामी अपोजिशन ने शिरकत की थी। इस तरह जिनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस में अगर अपोजिशन ने हिस्सा लिया तो मार्च 2011 में शुरू हुई शाम की खाना जंगी के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जबकि शामी हुकूमत और अपोजिशन बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। शाम के मामले पर जिनेवा 2 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तो होने जा रहा है, लेकिन शाम के अवाम को इस कॉन्फ्रेंस से कोई उम्मीद नहीं है। दमिश्क के मकामी बाशिंदों का कहना है कि ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में जारी खूनरेजी खत्म कराने में शायद ही कामयाब हो। शाम के बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से स्विट्जरलैंड में मुनक़िद होने वाले जिनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस में भले ही बशार अल असद हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं और शायद शामी बहरान के खात्मे की जानिब कोई पेशरफ्त भी हो, लेकिन फिलवक्त शाम के शहरियों को इस कॉन्फ्रेंस से कोई उम्मीद नहीं है। शामी बाशिंदों के मुताबिक न तो ये कॉन्फ्रेंस उन पर हो रही बमबारी रोक सकती है और न ही इस कॉन्फ्रेंस का मकसद शाम को बैरूनी मुदाखलत से बचाना है। शामी बाशिंदों के मुताबिक उनके मुल्क में मुदाखलत करने वाली ताकतें ही इस कॉन्फ्रेंस की अहम नुमाइंदा हैं। I want the conference to stop foreign interference in Syria's internal affairs, but it won't, as it is a conference of all of those meddling in our affairs. I hope Geneva too will create some way to stop supporting terrorism in Syria and hopefully end the violence. शाम के मामले में जिनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, शाम के आम शहरी तो बस मुल्क में तशद्दुद का खात्मा चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। आइए नाज़रीन, एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां पर बम धमाके हुए। आज दूसरे दिन भी मुसलसल धमाके हुए हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफी पाकिस्तान के जावेद रशीद जुड़ गए हैं। जावेद रशीद साहब, पाकिस्तान में ये जो धमाके हो रहे हैं, कल भी हुए, आज भी हुए, आम लोग मर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में इस पर क्या कुछ लिखा गया है? बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने मौका दिया। बात यह है कि ये पाकिस्तान में जो ये धमाके हैं, इसका तो तसलसल जो है ये तो तकरीबन अब तो ये 20 सालों पर मुहित हो गया है और अब इसमें बहुत ज्यादा तेजी इसलिए आ रही है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला है और उसे इनखला के लिए एक रास्ता चाहिए और उस रास्ते में रुकावट है तालिबान जो है वो पूरे पाकिस्तान में अब फैल गए। पहले तो वजीरिस्तान के अंदर कबायली इलाकों में होते थे, अब जो है वजीरिस्तान से लेकर कराची तक जो है वो फैल गए हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो धमाके और मुख्तलिफ किस्म की वारदातें करना शुरू कर दी, दहशतगर्दी शुरू कर दी है। इस हवाले से पाकिस्तान का मीडिया जो है तो बहुत ज्यादा तालिबान के खिलाफ बोलने और लिखने में भी जो है बहुत गुरेज करता है, इसलिए कि उनकी धमकियां भी आए दिन मिलती रहती हैं, सहाफियों को भी मिलती रहती हैं, हमारी मालिकान को भी मिलती रहती है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की सतह पर कोई सुनवाई नहीं है और वो उनके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि तालिबान की दहशतगर्दी से वो किसी भी सियासतदान को या किसी अखबार को, ये मीडिया को बचा ले। जी जावेद रशीद साहब, हुकूमत और तालिबान के बीच बातचीत होने की खबरें आई थी, क्या वजह रही कि बातचीत हो नहीं पा रही? हुकूमत बने इतना अरसा हुआ है, इतना वक्त गुजर चुका है, नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाने के वक्त इतने दावे किए थे कि पाकिस्तान में अमन कायम किया जाएगा, तालिबान से बातचीत होगी, तो क्या अमामिल है, क्या वजूहात हैं कि अमन कायम नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान में? देखिए की बात यह है कि अव्वल तो तालिबान के साथ जो है मेरी जाती मालूमात के मुताबिक तालिबान से किसी सतह पर भी कहीं कोई मुज़ाकरात की बातचीत नहीं हो रही है। ये सिर्फ नंबर गेम बनाए जा रहे हैं और सियासी तौर पर जो है वो ना किसी के राब्ते हैं उनसे, ना उनसे सिर्फ ये बयानबाजी की हद तक है। गवर्नमेंट का भी यही हाल है और हमारे जो है तालिबान की तरफ से भी है कि वो कोई बाकायदा संजीदा नहीं है। वो इसी तरह इस माहौल को रखना चाहते हैं, इसलिए कि इस सारे मामला को अमेरिका जो है बहुत बारीक बीनी से देख रहा है पाकिस्तान के अंदर और हुकूमत का इस सिलसिले में कोई तालिबान से न राब्ता है, ना उनका कोई बराह रास्त उनसे लिंक है। ये सारी सूरत हाल जो है सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि अमेरिका जो है इस खित्ते के अंदर जो है पाकिस्तान को
अपने हदफ पर रखना चाहता है और सारी सूरत हाल दहशत गर्दी धमाके और ड्रोन अटैक ये सारे उस सिलसिले की कड़ी हैं। ये ड्रोन अटैक होते हैं तो पूरा पाकिस्तान वावेला मचाता है, पाकिस्तान की जो तंजीमें हैं वो वावेला मचाती हैं, लेकिन जब इस तरह के तालिबान की तरफ से धमाके होते हैं तो ये तंजीमें कहां गायब हो जाती पता नहीं। लेकिन आम लोगों को, पाकिस्तान के जिन्होंने वोट दिया है नई हुकूमत को, नवाज शरीफ हुकूमत को, ये इनकी जिम्मेदारी है कि आम लोगों की हिफाजत की जाए और इस सिलसिले में कोई मजबूत कदम उठाए जाएं। तो सरकार क्या नाकामी का मुंह देखने, नाकामी की तरफ जा रही है? देखिए कि बात यह है कि हुकूमतें तो पिछले तकरीबन 8 साल जो परवेज मुशर्रफ का जमाना और 5 साल परवेज आसिफ जरदारी का जमाना है और 8 महीने इनके हैं, 1 साल ये समझ लीजिए आप, कि 14 माह के अंदर जो है 14 साल के अंदर कोई ऐसी पेशरफ जो है उनके खिलाफ नहीं हो सकी है, न फौजी कर सके हैं, न ये सिविल हुकूमतें कर सकी है 5 साल, और न ये अभी नवाज शरीफ कुछ कर सके हैं। वो अपना उनका एक बिल्कुल जुदा गाना तरीका है, वो अपने मुतालबात ये मनवाने की बात करते हैं और ये इस पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान की सरकार तो उनके मुतालबात मान ले, और ना ही फौज जो है उनके मुतालबात को जो है वो तस्लीम कर सकती है, ना ही उनके साथ वो बैठ सकते हैं। सूरत इतनी गंभीर है कि अब तो बहुत मामला आगे बढ़ गया है। अभी कल ही उन्होंने ताजा देखिए वाक़े के अंदर जो है आर्मी को अटैक किया है, उसके ऊपर अच्छा खासा हमला हुआ और काफी जवान उसके अंदर जो है वो जहां भाग हो गए। इतनी सूरत हाल है जिसका जायजा लेने के लिए जो है सरकार बैठी तो है आज, लेकिन जो उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है, इसलिए कि मुज़ाकरात के लिए कोई कुव्वत उन्हें दस्तयाब नहीं है हमारी सरकार को। जी जो हुकूमत भले ही किसी की बने पाकिस्तान में, अगर हालात इसी तरह से बने रहे तो पाकिस्तान की आवाम तो अल्लाह भरोसे ही है फिलहाल अभी। ये बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम का तो हाल यही है, यहाँ की जनता तो ऊपर वाले के ऊपर निगाह रखे हुए है, नीचे से तो कोई इनको जो है किसी किस्म की रिलीफ मिलने का, कोई उनको राहत से मिलने का कोई इम्कान नहीं है। जी शुक्रिया जावेद रशीद साहब हमसे बात करने के लिए। ये पाकिस्तान के सहाफी जावेद रशीद बता रहे थे जिस तरह से हुकूमत उनकी नॉलेज में, जैसा उन्होंने कहा कि अभी कोई मामला इस तरह का शुरू नहीं हुआ है कि बातचीत की जाए और उनके मुतालबात माने जाए। हुकूमत भी अब इस पोजीशन में नहीं है कि तालिबान के मुतालबात को माना जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। छोड़ो का दर्द, पीठ दर्द, लूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो लूरामेट है ना। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
ایران نے 24 نومبر 2013 کے جنیوا معاہدے کے تحت یورینیم کی 20% تک کی افزودگی کا عمل آج سے روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے بھی ایران کے اس قدم کی تصدیق کی ہے۔